Have you ever built a project but got nervous when someone asked you to explain it? Today, in this video, I'm going to answer how do you explain your project in an interview. Hi everyone, my name is Ashish Kishore. I have completed my engineering from Haldia Institute of Technology and I was fortunate enough to give interviews in 5 different companies including Cognizant, Infosys, Capgemini, LTI Mindtree and PwC. And I was able to crack 4 companies out of them, and currently I'm working at PwC. So in this video I'm going to answer this question, that how do you explain your project in an interview. So let's get started. So welcome to the first chapter, why interviewers ask about your projects. So many students think that project is equal to marks, but in reality interviewers think that project is equal to proof of your work. They do not expect any fancy UI, any AI buzzwords, or any high number of features. That they are not expecting a fresher to build a Google or a Microsoft in a fresher interview. What they actually want to see is that whatever skills you have mentioned in your resume, are you able to implement it in a practical manner or not? They want to test how you think, they want to test how you approach to solve a problem. They want to know that whether you have actually coded or not. Like they will ask for where is the code for this particular feature from your project, things like this. They will see that whether you are able to work in a team or not, that whether you have done a team project or not. So these are some of the things that is judged on the basis of your project. So let's move on to the next chapter. So, in this chapter, I'm going to tell you what steps I followed in order to explain my project. And I just want to mention it that I have received a lot of compliments from various recruiters when I used to explain my project. No, then at the end of the interview, they used to say that, yeah, this project explanation was good. That, yeah, sir, you explained really good. So I would just like to share that how I used to approach to explain my project. Starting with point number 1, project name. It should be as simple as it can be. For example, in my case, I built an AI coding instructor. So I just mentioned the name AI coding instructor. This is the name of my project. Similarly, you will have to choose a name for your project that resembles what your project is actually about. So point number 2 is the problem statement. कोशिश आप ये करो कि आप जो भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, एंड आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर पाओ. आफ्टर यू नेम योर प्रोजेक्ट, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम एग्जैक्टली योर project is solving. For example, in my case, it was an AI coding instructor. So mine was not like a very big problem, but it was a simple explanation that many AI tools are there. Students often get distracted while searching for the solutions. So I made a AI coding instructor particularly for coding purpose. So here students will not get any answer related to any other topic. They will be focused and they will have the answer for only the coding related questions. So this was my explanation for my problem statement. But आप अपने हिसाब से, बट आपका why काफ़ी क्लियर होना चाहिए. आप उस why को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ अपने इंटरव्यू के टाइम. ये चीज़ आपको पहले से सब कुछ, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, सब कुछ आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है. So after problem statement, obviously the next point would be the solution. What solution have you built? How was your approach to solve this problem? Explain that how your project solved this problem. Explain the features you have implemented to solve that particular problem. Like explain the idea, your approach while building the project in this column, like in the solution phase. Here you can really explain your features in a very good manner. And from my side, what I would say is, write your features in single pointer. Don't try to memorize it. Write a good name, like a flashy name, attractive name for your features heading, and then try to explain it in your own words. This way you will have 3 to 5 features of your project said to the interviewer, and you will be able to explain it very well. So next point is explaining what tech stack, what technologies have you used. You not need to say like, I've used HTML, CSS, JavaScript, Node.js, yeah, MongoDB, React, just like that. No, this is the wrong way. You need to explain why you have picked up that technology. For example, if you're saying React, you can say I use React
for the better UI purpose. If you're saying MongoDB, you can say that I used MongoDB for the flexible database. If you're saying like Node.js, so you can say that I used it for the backend purpose. So this way, interviewer will know that yeah, you know why this technology you have picked and what this technology is actually doing in your project and how is it helping your project to be better. So next point is you should have an architecture ready in your mind that how your project is actually working. Starting from user Aya, then he looked into the front base, like you know the flowchart kind of thing. User, then front end, then back end, then where's the database, where is the API is getting called. You can just draw this image in your mind and you should be clear that yeah, this is the flow of my project, this is how backend is working, this is how API integration is working, this is coming when and what is coming when. This is all you need to prepare beforehand. So this is the one of the important points and I've seen कि बहुत लोग ये आर्किटेक्चर वाले पॉइंट को बहुत ईजिली इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं. बट लेट मी टेल यू, अगर वो आपसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोले या फिर आपको अगर वाइट बोर्ड पे लिखने को बोले, आप उनके सामने ऐसे बॉक्स बना के ड्रॉ करोगे ना कि यूजर, देन एरो फ्रंट एंड, देन एरो बैक एंड, देन एरो API इंटीग्रेशन, देन एरो डेटाबेस, लाइक दिस, तो इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन देम. नेक्स्ट पॉइंट इज challenges. You need to write the major challenges that you face during the project. So आपको ये चैलेंज एक्सप्लेनेशन के टाइम एक्सप्लेन नहीं करना है, बट इंटरव्यूअर्स कैन आस्क दैट हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस. सो उस टाइम आपको रेडी रहना है, आपको पहले से रिसर्च करके रखना है कि या तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही. तो वो जब आप बना रहे हो आप उसी वक्त कोशिश करो कि आप अपने प्रॉब्लम को लिख दो. जैसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें API इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बैकएंड में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, या डेटाबेस में प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये सब चीज़ आप पहले से अगर प्रिपेयर रखोगे, एक कॉपी में लिख लोगे कि हाँ अगर चैलेंजेस पूछा जाएगा तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मैंशन. एंड ऑल्सो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप चैलेंजेस लिखो, उसके साथ आप ये लिखो कि व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू टू ओवरकम दैट चैलेंज. ये नहीं कि सिर्फ चैलेंज बता दिए और छोड़ दिए, आपको चैलेंज भी बताना है, देन आपको उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि आपने अप्रोच क्या लगाया, आपने क्या सोचा कि आप उस चैलेंज से बाहर निकल पाए. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप प्लीज़ इन सबको नोट करते जाओ. एंड इसका आंसर एक टेक्स्ट कॉपी में या मोबाइल में कहीं ना कहीं अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में ना सिर्फ इतने सारी चीज़ों में ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, project explanation is the most important part. Like in PwC where I am working right now, उन्होंने technical questions बहुत कम पूछे थे. They just wanted to check the communication. तो मैंने जब project explain करा, they were really impressed. Like yeah, project explanation is very good. So I would say project आप अच्छे से explain करना सीखो, बनाने से ज़्यादा आपको बताने में आना चाहिए. क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे स्क्रीन शेयर करा के आपका प्रोजेक्ट पूछेगा, क्योंकि पूछ भी सकता है बट नहीं भी पूछ सकता है. तो हो सकता है आपको सिर्फ वर्बली ही बोल करके अपना प्रोजेक्ट विजुअलाइज कराना पड़े, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़े. सो यू नीड टू बी रेडी. सो इन लास्ट पॉइंट व्हाट यू कैन मेंशन इज your future improvements. Like what are the things that you are going to bring in the future, like what you have thought but you were unable to build in present, but yeah, these are the things that you feel to do it in the future. For example, in my project what I told that I have not made a history kind of thing for the students to see what problems have they asked before, so I'll make that. And similarly feedback section, something according to your project. But this point should be remembered that you need to prepare what some of the future improvements that you want to give to your project. So with this chapter is over. Let's move on to the next chapter. Before going on to the next chapter, I want to tell you about this Mirai School of Technology. जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या वो कहीं अच्छे जगह से बीटेक करना चाहते हैं, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या है मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ. लाइक डे 1 से आपको मैकबुक मिल जाएगा. सेकेंड थिंग इज़ AI जो है वो यहाँ पे किसी एक सेमेस्टर में नहीं है, वो बल्कि पूरे सेमेस्टर में डे 1 से ही आपको ChatGPT, Copilot, Claude, एवरीथिंग
एवरीथिंग, हर एक चीज़ का जो कि मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये सारे एआई भी आप लोगों को सिखाए जाएंगे सो दैट यू बिकम स्किलफुल। आपको इंटर्नशिप के लिए भी रेडी कर दिया जाएगा सेकेंड थर्ड ईयर में आते आते। योर प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी गुड। एंड आई थिंक ये जो कॉलेज है ये एक लेटेस्ट करिकुलम फॉलो कर रहा है, नॉट लाइक ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो 10 साल या 15 साल से सेम सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी इन माई आईज। सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज उनका भी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाला है, दैट इज ऑन द 13th August 2026 एंड लास्ट डे टू अप्लाई इज 12th August 2026। अब अप्लाई करोगे यू विल गेट दी स्कॉलरशिप, 25%, 50% और इवन 100% तक का स्कॉलरशिप है। सो अच्छा, स्कॉलरशिप की बात को हटाकर साइड भी रखते हैं, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो कोडिंग कल्चर है, लाइक देयर आर स्टूडेंट जिनका नाम इंडियाज़ गूगल बिग कोड टॉप 50 में आया है। वहाँ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे हैकाथॉन्स, नेशनल लेवल हैकाथॉन्स को क्रैक किया हुआ है। वहाँ पे लोग फर्स्ट ईयर से ही अपना मोन स्टैक वेबसाइट बना पा रहे हैं। सो ऑल दीज आर अ गुड कल्चर एंड अच्छे कल्चर वाले कॉलेज से आप अपने आप अच्छा करने लगोगे। सो दिस इज द एग्जाम डेट 13th of August। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। लास्ट डे इज 12th of August 2026। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। In this chapter, I will tell you about what are the most asked questions by an interviewer in a project. So, पिछले चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, आप देखोगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे उन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, what are the future improvement that you want to bring, why you chose this technology instead of that technology. Then they can ask, what if I remove this technology, then what will happen. Then if API integration है आपके project में, then they can ask that how this API integration is working. They can also ask, अगर आप फीचर्स बहुत सारे एक्सप्लेन करोगे तो they can ask स्क्रीन शेयर करा के that where is the code for this feature is written. like कोई चैटबॉट है तो चैटबॉट का कोड, वहाँ पे माइक का बटन, तो माइक का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड वन बोनस टिप, आप अपने कोड में कमेंट में अच्छे से लिख सकते हो, जिससे देखो, एक तो कमेंट लिखना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स होता है, सही से लिखने का तरीका होता है। एंड दूसरा, आपको खुद ही में हेल्प मिलेगा कि आपका कमेंट में लिखा होगा तो आप इजीली वहाँ पे जा पाओगे, आप खुद तुरंत रीड करके बता पाओगे कि या इस चीज़ का कोड यहाँ पे मेंशन्ड है और वो 100% सही भी होगा एंड ये लीगली भी करेक्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप विच आई वुड से। देन दे कैन आस्क लाइक हाउ इज़ योर प्रोजेक्ट डिफरेंट, लाइक आपके प्रोजेक्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपके प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे माइट आस्क। सो all these questions will come from the points that I have mentioned in the previous chapter only. So अगर आप उन सभी points को अच्छे से prepare करते हो, अच्छे से बैठ करके, so you will be able to answer most of the questions. So move on to the next chapter. So welcome to the last chapter, that is my personal tips. So these are the tips जो मैंने सारे companies में interviews दे करके सीखा है, and these are what I have felt, what worked for me, what did not work for me. So I have compiled all of them and I have come up with this 10 number of tips. So starting with the first tip. फर्स्ट स्टेप इज, आप जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो तो आप जब वो अपना एक्सप्लेनेशन का स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, जब मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताया है वो सब, तो आप कोशिश करो कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 मिनट के अंदर डेफिनेटली हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है, कम बोलना भी सही नहीं है। सही बोलना और सही टाइम तक बोलना जिससे कि वो बोर फील ना हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ऑन दिस कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप जो बता रहे हो वो चीज़ सही से डिलीवर हो जाए। सेकेंड टिप वुड बी, अपने प्रोजेक्ट को जो है लैपटॉप पे ओपन रखो जब आपका इंटरव्यू है। अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो बैकग्राउंड में अपने प्रोजेक्ट को ओपन रखो कि जस्ट इन केस वो बोले कि स्क्रीन शेयर करके दिखाओ अपने प्रोजेक्ट को, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वो डायरेक्टली ओपन हो। इससे क्या है, आप टाइम सेव कर पाओगे और इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि यार ये लड़का सीरियस है इंटरव्यू को लेकर के, ये इग्नोर नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ रेडी है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है। तो दिस इज़ द सेकेंड टिप। थर्ड टिप इज़, बहुत लोग क्या है डिप्लॉयमेंट को इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मत करना। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ आप डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर नहीं भी आता है डर लगता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे किसी का भी देख लो, 2-3 मिनट का काम है, तुरंत ईजिली डिप्लॉय हो जाता है चीज़ें। तो डिप्लॉय ज़रूर करो और उसी लिंक से उस चीज़ को खोल करके दिखाओ, तो इससे लगेगा कि या दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रोजेक्ट, लाइक स्टूडेंट हैव
practiced and student have taken it seriously that yeah इस project को मैं seriously बनाऊँ. फोर्थ टिप इज़ एक आपका प्रोजेक्ट टीम वाला प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है. लाइक एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने टीम में काम किया हो, 2 लोग का टीम, 3 लोग का टीम, 4 लोग का टीम, डजेंट मैटर. अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है दैट आपको प्रोजेक्ट जब मिलेगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है. सो दे इंटरव्यूअर वांट्स टू चेक कि अगर आप सिर्फ सोलो प्रोजेक्ट ही बनाए हो या फिर आपको टीम वर्क करना आता है. इससे आपका ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा कि या आप टीम प्लेयर भी हो, आप सोलो प्लेयर भी हो, जो कि सही है. नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक जेन AI प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ. अभी चूँकि जेन AI काफ़ी बूम में है, जब मैं था उस समय भी बूम पे था उस समय, लेकिन स्टार्ट हो रहा था. लाइक ये इंटरव्यूअर्स में पूछना, उसका करिकुलम स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय मैंने बनाया था जेन AI एंड मैंने वो ज़्यादा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, एक हफ्ते में ही बना लिया था. एंड उसी प्रोजेक्ट को मैंने हर एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया एंड आप मानोगे नहीं दैट उस प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न शायद मेरा इतने सारे कंपनीज में हो गया. सो जेन AI प्रोजेक्ट इज़ अ मस्ट, एक ना एक ज़रूर होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज़ आप जो भी टेक्नोलॉजीज़ अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हो, तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मत मेंशन करना जो आपको उसका आइडिया नहीं हो. अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट है भी जिसमें आप कोई टेक्नोलॉजी है, आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आप ChatGPT से पूछ लो, उसका बेसिक आइडिया ले लो. एंड वन बोनस स्टेप इस केस में, अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आप मेंशन करना चाहते हो, वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, आप उसको मेंशन कर दो और आप बेसिक आइडिया उसका ले लो. और अगर उसमें कोई डीप में पूछा जाए तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इम्प्लीमेंट मेरे फ्रेंड ने किया था, हमने इस प्रोजेक्ट को टीम में बनाया था. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. जब आप एक टीम वर्क वाले प्रोजेक्ट को ऐड करते हो तो आप ये चीज़ आसानी से बोल सकते हो. सो आप बेसिक नॉलेज भी उसका रखोगे, साथ में डीप नॉलेज के लिए आप ये भी बोल सकते हो टीम है. तो ये सब चीज़ जो है ये आपको अच्छा ही मार्क्स देगा. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कॉपी प्रोजेक्ट बट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आई एम नॉट सेइंग कि आप सारा प्रोजेक्ट खुद से ही बनाओ. इट्स ओके टू कॉपी समवन एल्स प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट व्हेन यू आर कॉपिंग मेक श्योर आप उसमें एक ना एक चेंजेस ज़रूर करो. आप एक ना एक चेंजेस अपने तरफ से कुछ उसमें यूनिकनेस ऐड करो, ताकि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओ कि व्हाट इज़ सो यूनिक इन दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट मैंने कई जगह देखा है बट यूनिकनेस क्या है. सो आप जब वो डालोगे, एक तो आपको प्रोजेक्ट का कोड उस वक्त सही से समझ आ जाएगा, सेकंड थिंग आपका यूनिकनेस ऐड हो जाएगा, तो वो कॉपी प्रोजेक्ट कहलाएगा भी नहीं. सो कॉपी करो बट स्मार्टली कॉपी करो. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बोथ द मैनर्स. सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू में हो तो आप स्क्रीन शेयर तो कर नहीं रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो कि आप बोल करके किस तरह से विजुअलाइज कराओगे, हैंड का जेस्चर्स कैसे यूज़ करोगे, आप आर्किटेक्चर को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, फीचर्स में क्या क्या पॉइंट बोलने वाले हो, हर एक चीज़. वो जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट जो 2 मिनट का आपका स्पीच होगा, जैसे इंट्रोडक्शन स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये स्पीच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप ये चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस करो, कैमरा के सामने रिकॉर्ड करो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, जस्ट सी कि आप सही फ्लो में जा रहे हो एंड 1.5 से 2 मिनट में वो ख़त्म भी हो रहा है कि नहीं. क्योंकि क्या होता है जब प्रोजेक्ट खुद का होता है तो लोग इमोशनल होकर के एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, करते चला जो कुछ है सारा सामने ले आते हैं, देन नया क्वेश्चन आने पे ख़त्म हो जाता है. सो ऐसा भी नहीं करना है कि अपना सारा कुछ सामने एक ही लाइन में बोल दिए. आपको सही चीज़ बोलना है एंड 2 मिनट के अंदर सही तरीके से स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्ट भी अच्छा होना चाहिए एंड एंड भी अच्छा होना चाहिए. इस तरह से आपको अपना स्पीच प्रिपेयर करना है. सेम थिंग आपको एक चीज़ और के लिए करना है, स्क्रीन शेयर. जब आपको प्रोजेक्ट लाइव दिखाने के लिए बोला जाए स्क्रीन शेयर करके, तो आपको उसमें भी दिखाना है कि आप एग्जैक्टली किस फीचर्स को दिखाओगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे. अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है तो आप क्रेडेंशियल एक गेस्ट यूज़र का पहले से बना के रखोगे जिसमें कि टाइम वेस्ट ना हो. आप किस तरह से दिखाओगे, पहले कौन सा फीचर, सेकंड कौन सा फीचर, थर्ड कौन सा फीचर, एंड उसका कहाँ पे कोड मेंशन्ड है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. इंटरव्यूअर रोक करके पूछ ले तो आप ऐसे पैनिक ना कर जाओ. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी बोल ही लिया. और डिप्लॉयमेंट का जो लिंक है वो लिंक आप रेज्यूमे में डालना. रेज्यूमे में बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि गिटहब का लिंक डाल देते हैं जहाँ पे सारा कोड्स है, वो नहीं, आप डिप्लॉयड लिंक को रेज्यूमे में डालना एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. तो दीज वर सम ऑफ माई टिप्स जो कि मैंने खुद सीखा है एंड विच आई वॉन्टेड टू टेल यू. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली. इसके अलावा मैंने
जो भी 4-5 कंपनीज में इंटरव्यू दिया है उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन कॉमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट. सो नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं बनाता हूँ तब तक के लिए ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट.